دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي وقال في مقام آخر من رأى منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ فهو ذلك اضعف الایمان وقال في مقام آخر اعمالکم امالکم او کما قال علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ اسٹیج پر رونق افروز اکابر علماء کرام، مشائخ اعظام اور معزز سامعین، یہ محض اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان ہے کہ اس نے اس دجلی دور میں، فتنے کے دور میں، اور میں مزید سخت جملہ کہہ رہا ہوں قیامت کے دور میں، مجھ کو اور آپ کو اپنی نسبت کے ساتھ زندگی عطا فرمائی۔ مزید احسان یہ ہے کہ اس نے اس ماحول میں رکھا جس ماحول میں میں اور آپ پوری آزادی کے ساتھ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ مزید انعام یہ ہے کہ اس نے اس کے گھر میں آ کر ہم کو سر جھکانے کے مواقع فراہم کیے۔ مزید احسان یہ ہے کہ اس کے کتاب کو تلاوت کرنے کا موقع دیا۔ مزید احسان یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی سیرت کو اپنی زندگی میں سرایت کرنے کا موقع دیا۔ مزید احسان یہ ہے کہ ایمان کی نسبت پر آج کی اس مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مزید رب ذوالجلال کا احسان ہے، ورنہ میری آپ کی طاقت اور اوقات کیا ہے کہ میں کسی نیک کام کی طرف چل کر آ جاؤں؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس نے مجھے لایا۔ آج آپ جس بینر کے تلے جمع ہوئے، یہ جمعیت علماء ہند کا بینر ہے۔ جمعیت علماء یہ ملک کی وہ مائع ناز جماعت ہے جس نے آج سے 1 صدی پہلے اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ کر اس کے بعد اس ملک پر جو گوری چمڑی کا سایہ یہاں پر مسلط ہوا تھا، جو ظالم حکمران یہاں پر آئے تھے، ان کے تسلط کے خاتمے کے لیے جمعیت علماء ہند نے اپنا بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ صرف ملک کی آزادی ہی میں نہیں، ملک کی تقسیم میں جمعیت علماء ہند نے اپنا کردار ادا کیا، اور ہمارے اکابرین نے اس خطے کو پسند فرمایا جس خطے سے آج پورے دنیا کے اندر اللہ نے دین کی محنت کے سرچشمے کو جاری کر دیا۔ اور آگے اکابر نے اس خطے کو قبول کیا جہاں پر پورے دنیا میں علوم قرآن و شرعیہ کے پھیلنے کا اللہ نے جس زمین کو منتخب فرمایا، میرے اکابر نے جان کے نذرانے دیے اور اس جماعت میں وہ اپنا کردار ادا کیا۔ آج جب میرا ملک پھر سنگین حالات سے گزر رہا ہے، میری قوم پھر زبوحالی کا شکار ہو رہی ہے، میری نسبت جس قوم سے ہے وہ قوم ضلالت اور گمراہی کی طرف جا رہی ہے، پھر ہماری جماعت نے ایک قدم اٹھایا۔ سن 1990 سے ایک ہر سال مسلسل تسلسل کے ساتھ نشرہ شروع کیا، جب مسلمانوں میں بیجا خرافات جنم لینے لگے، مسلمانوں میں سیرت سے دوریاں پیدا ہونے لگی، مسلمان محمد رسول اللہ کی زندگی کو چھوڑنے لگا، مسلمان محمد رسول اللہ کی زندگی کو فراموش کرنے لگا، جمعیت علماء ہند نے سن 1990 میں پھر اصلاح معاشرے کا اشرے کو طے کیا۔ اور 1990 سے لے کر آج میں اور آپ جس سن میں جی رہے ہیں، یہ سن 2022 کا سن ہے، اور آج بھی میں اور آپ، ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، کئی صوبے ہیں، اس صوبے کے اندر ہمارا ایک چھوٹا سا ضلع ہے، اس ضلع میں ایک چھوٹی سی تحصیل ہے، اس چھوٹی سی تحصیل میں چھوٹی سی بستی ہے، اور الحمدللہ خدام جمعیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ غرض کیا ہے
میرا معاشرہ وہ پاکیزہ معاشرہ بن جائے جس معاشرے کو محمد رسول اللہ نے اپنے خون سے سینچا تھا، جس معاشرے کو محمد رسول اللہ نے اپنے پسینے سے سینچا تھا، وہ معاشرہ تعمیر ہو جائے جس معاشرے کے لیے محمد رسول اللہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے۔ آج میں میری غفلت آپ کو کیا بتاؤں، امت مسلمہ کی غفلت کا عالم میں کیا بتاؤں۔ آج کے اس اجلاس کا عنوان سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ ہے۔ امت میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عنوان ہے جس کے اندر سارے عنوان خود بخود موجود ہے۔ اگر محمد رسول اللہ نہ ہوتے، آپ کی زندگی نہ ہوتی، کبھی بھی وہ معاشرہ نہ ہوتا جس معاشرے کے لیے میں یہاں پر چل کر آیا ہوں، وہ معاشرے کو میں بیان نہ کر پاتا جس معاشرے کو محمد رسول اللہ نے وجود بخشا ہے۔ مسلمان چاہتا ہے پورے عالم میں اسلامی سلطنت قائم ہو جائے، مسلمان چاہتا ہے خلافت آ جائے، مسلمان چاہتا ہے امارت آ جائے، مسلمان چاہتا ہے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی آئے ظلم کے بازار کو ٹھنڈا کر دے، تو مسلمان چاہتا ہے کوئی سلطان ٹیپو آئے آج کے باطل کو مزہ چکائے۔ خدا پاک کی قسم اس معاشرے میں ایسے اشخاص پیدا نہیں ہوتے جہاں کی ماں بے حیا ہو اور جہاں کا باپ زانی ہو۔ میں اور آپ اس بات میں خام خیالی خوابوں میں زندگی جی رہے ہیں۔ ہر چیز کو امت نے ٹرن کیا ہے، ہر چیز کو اپنے راستے بدل دیے، رخ تبدیل کر دیا۔ میں تنقید کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھا، میں کسی پر تنقید کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک معاشرے کا وہ حقیقی تجزیہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا جس کو کہتے ہوئے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے اور شاید ہو سکتا ہے آپ کو بھی میرے جملے خراب لگے، لیکن یہ وہ حقیقت ہے نہ جس سے میں انکار کر سکتا ہوں نہ آپ انکار کر سکتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا عجیب عنوان ہے، عجیب عنوان ہے۔ اگر کوئی خطیب اپنے خطابت کے پہلے دن سے محمد کے نام کا مہم کو شروع کرے، میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں، اپنی قسم میں انشاءاللہ حانس نہیں ہوگا، وہ میم ہی کی تعریف کرتے کرتے زندگی لگ جائے گی، میم کی تعریف کرتے کرتے وہ فنا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کے اعلیٰ علم والا، اعلیٰ ظرف والا اس کی نسل سے آئے گا، وہ خطاب شروع کرے گا، وہ خطاب کرتے ختم ہو جائے گا۔ 1443 سال ہو گئے، ہر علم والا، ہر فن والا اپنی فن میں مہارت کے باوجود محمد رسول اللہ کی سیرت کے اتنے رخ کھول دیے، اتنے دہانے کھول دیے، خدا پاک کی قسم 1443 سال ہو گئے، آج تک میم محمد کے میم کی تعریف مکمل نہیں ہوئی۔ میں اور آپ چاہتے ہیں محمد رسول اللہ سیرت کا ایک مہینہ خاص ہے، کیا کیا جائے؟ امت تقسیم ہو گئی، ہاں سیرت دو قسم کی ہے، لوگوں نے علماء نے تعریف لکھی ہے۔ سیرت کہتے ہیں زندگی کو، اگر میں زندگی کی بات کروں تو محمد رسول اللہ سے زیادہ حسین بیٹھنے والا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ دکھنے میں حسین کوئی نہیں، آپ جیسے روشن چہرے والا نہ آپ سے پہلے کوئی ہوا، نہ قیامت کی صبح تک کوئی آئے گا، آپ سے زیادہ سخاوت والا، آپ سے زیادہ سخی نہ آپ سے پہلے دنیا نے دیکھا، نہ قیامت کی صبح تک دنیا دیکھے گی، آپ جیسی آپ کی حسین زلفیں نہ قیامت تک اس زمین نے دیکھی، نہ آسمان دیکھے گا۔ خدا پاک کی قسم محمد رسول اللہ کی کس سیرت کے کس پہلو کو بیان کروں؟ امت تقسیم ہو گئی، ہائے افسوس، سیرت کے نام پر امت نے ننگے ناچ شروع کیے، امت نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، میں تنقید کی بات نہیں کر رہا ہوں، او ہترون کے مسلمانوں آؤ تنہائی میں بیٹھو، گوشہ تنہائی کو اختیار کرو، اپنے دل پر ہاتھ رکھو، اس دل سے کہ لا الہ الا اللہ اور کہ محمد رسول اللہ، وہ دل آپ کی گواہی دے گا، اللہ سے زیادہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت والا نہیں، کوئی عزت والا نہیں، کوئی عظمت والا نہیں، کوئی وجاہت والا نہیں، کوئی عزت والا نہیں، کوئی کبریائی والا نہیں، وہی آپ کا دل یہ کہے گا محمد رسول اللہ سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی محبوب نہیں۔ ہم نے اس نبی کی زندگی کا کیا تماشا بنایا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ گزشتہ چند دن پہلے اس مہینے کی 12 تاریخ کو ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ہم نے انسانیت کو پیغام دیا۔ ہمارا نبی نعوذ باللہ وہ لوگوں کی راحت رسانی کے لیے نہیں آیا، وہ لوگوں کو تکالیف دینے کے لیے آیا۔ نعوذ باللہ ہمارا نبی وہ ننگے ناچ گانے بند کرانے کے لیے نہیں، نعوذ باللہ ناچ گانے لانے کے لیے آیا۔ ہمارا نبی وہ دنیا کے اندر امن لانے کے لیے نہیں، نعوذ باللہ فساد و فتنوں کو پھیلانے کے لیے آیا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا امت کا نوجوان ہائے رے ہائے تیرے عشق
के क्या कहने। अरे इश्क तो आशिक तो वो होता है। अगर इश्क रिसालत देखना चाहते हो, आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलदस्ते के उस फूल के देखो जिसने इश्क रिसालत सिखलाई है। अबू बकर सिद्दीक के इश्क को देखो, हाय रे हाय। इश्क कहते हैं उसे जिसे अबू बकर सिद्दीक ने करके दिखलाया। इश्क कहते हैं उसे जिसे उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने करके दिखलाया। इश्क कहते हैं उसे जिसे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने करके दिखलाया। इश्क कहते हैं उसे जो अली अल मुर्तज़ा ने करके दिखलाया। और 21 सदी के मुसलमानों, मैं आपसे भी मुखातब हूँ, अपनी ज़ात से भी मुखातब हूँ। मैं अपने आप से खिताब करके कह रहा हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इश्क कहता है आज की तन्हाई में और रात के अंधेरे में और तपते सर्द रातों के अंदर, उठ तेरा बिस्तर छोड़, 4 बजे की रात में, रात के आखिर पहलू में उठ, अपने रब के सामने खड़े होकर रोना शुरू कर दे। ये इश्क रिसालत कहती है। इश्क रिसालत ये नहीं कहता आप सड़कों पर निकल कर नंगा नाच नाचो। इश्क रिसालत हरगिज़ इस चीज की इजाजत नहीं देता मस्जिद में अजानें हो जाए, मस्जिदें खाली पड़ी रहे, आप बेहयाई का नंगा नाच देखते रहे। इश्क रिसालत इस बात की इजाजत नहीं देता मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिन मिट जाए और आप बेदीनी के ऊपर चलते रहे। इश्क रिसालत इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप इश्क का दावा करते रहे, इधर निफाक को दिल में पालते रहे। मैं और आप कहां चले? आओ अगर सीरत की बात करूं, उस सीरत की जिस सीरत को अल्लाह ने दुनिया के लिए आइडियल बनाया, तो मेरा आपका नबी जब हज़रत आमिना के पेट में आया, मैं उस रात की बरकत को क्या कहूं, मैं उसके असरात और समरात को क्या कहूं। अजीब बात है। अम्मा जान होते आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से उनके मुत्तलिब ने पूछा, ओ आमिना तेरे खुशबू के बड़े चर्चे हैं, तो खुशबू कौन सी लगाती है? उन्होंने कहा, हाय अब्बा जान मैं आपसे क्या बताऊं, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मेरे रब के इज्जत की कसम मेरे पसीने से ऐसी खुशबू आती है, मैं चाहती हूँ छुपाई जाए। मेरे अब्बा जान वो खुशबू छुपती नहीं, वो महकती रहती है। अब्बा जान मैं इस बच्चे की बरकत क्या बताऊं, जब से बच्चा मेरे पेट में आया है। अब्बा जान इस जमीन रुई के गाले की तरह नरम हो गई है। अब्बा जान मैं इस बच्चे की बरकत क्या बताऊं। मैं सीरतुन नबी का भी एक पहलू बतला रहा हूं। अब्बा जान मैं इस बच्चे की बरकत क्या बतलाऊं, मैं जब कुएं पर जाती हूँ पानी चलकर मेरे पास आ जाता है। अब्बा जान मैं इसकी बरकत क्या बतलाऊं, मैं जब भी सूरज में निकल जाती हूँ अब मुझ पर साया फगन हो जाता है। अब्बा जान मैंने अजीब हालात देखे हैं, जब से बच्चा मेरे पेट में आया न मुझे भूख का एहसास होता है, न मुझे प्यास का एहसास होता है। मुझे अजीब ख्वाब दिखते हैं, मुझे ख्वाब में जन्नत दिखती है, मुझे ख्वाब में फरिश्ते दिखते हैं। अब्बा जान मैं क्या कहूँ इस बच्चे की बरकत। आओ फिर असर दिखलाया। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत का एक पहलू आपको बतला रहा हूँ, असल सीरत बतलाऊंगा। सीरत किसे कहते हैं? सीरतुन नबी जलसों के लिए नहीं है, सीरतुन नबी मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए नहीं है। मेरी बात आपको बुरी लगेगी, हिंदुस्तान और खासतौर से इस दौर के मुसलमानों ने, तालीम याफ्ता मुसलमानों ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर बड़े बड़े मुकाबला जाती इम्तहानात तो मुनाकिद कर दिए, बड़े बड़े जलसे तो मुनाकिद कर दिए। मैं पूछना चाहता हूँ उन मुसलमानों से, आओ सीरतुन नबी का वो अहम पहलू जिसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी आखिरुज़ ज़मान बनाकर भेजा गया, जिसके जरिए जिसकी वजह से आपको अल्लाह ने सबसे ज्यादा महबूब बनाया, जिसके वजह से आपको तमाम नबियों का सरदार बनाया, जिसकी वजह से आपको तमाम उम्मतों की सरदार उम्मत दी, जिसके सदके में वो काम, जिस काम के लिए आपको नबी मुंतखब किया गया, वो काम इस उम्मत को दिया। मैं पूछना चाहता हूँ तबके से, वो उस काम को कितना लिए हुए, वो उस काम को कितना लिए हुए। मैं कह रहा था सीरतुन नबी का पहलू वो जब अम्मा आमिना के पेट में आए और जब वो आग वहां से निकले, जब हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह, मैं इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूं, जब हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बच्चों को लेने को आई, सारे मक्का सबसे पीछे थी, सबसे ताखीर से पहुंची। अब मक्का में कोई बच्चा नहीं था, ये तो यतीम थे। आपके वालिद मोहतरम का साया आपकी विलादत से पहले उठा लिया गया, गोया आपके पास में माल मनाल के नक्शे नहीं थे, कोई बख्शिश करने वाला नहीं था। हज़रत हलीमा ने सोचा चलो आए हैं कमजोर उठनी के साथ, हम भी गुर्बत की हालत में आए हैं, खाली हाथ जाने से बेहतर है कोई बच्चा लेकर चले जाए, कुछ तो मिल जाएगा। हलीमा कहती है मैं इस बच्चे की बरकत क्या बताऊं, हाय मेरी जान कुर्बान इस बच्चे के ऊपर। जो ही मैंने बच्चे को गोद में लिया मेरे जिस्म में बिजली दौड़ गई, जो ही बच्चे को लेकर ऊँटनी पर बैठी, वो ऊँटनी जो चलने के लिए लागिर थी,
कमजोर हो चुकी थी। अचानक तेज लो दौड़ने लगी। वो बकरियां जो दूध से खाली हो चुकी थी, दूध उनकी थनों से उबलने लगा। मैं इस बच्चे के क्या असरात और मौजज़ात को बयान करूं जो मैंने अपने आंखों से देखा है। जब बच्चा दालान में झूलता है, झूले में झूला जिसको डालती हो, हाय मेरी जान कुर्बान, मैंने मोहम्मद को देखा। जब वो हाथ इधर करता है, चांद इधर के सिमट जाता है, जब हाथ उधर करता है, चांद उधर के सिमट हो जाता है। मैंने देखा है चांद सितारे इसके इशारों पर खेलते हैं। हाय मेरी जान कुर्बान, मैं इस बच्चे के क्या मौजज़े बयान करूं। ये अजीब बच्चा है, मैंने बच्चों में इसको खेलते देखा। इसको मैंने बच्चों में जब देखा, इसके अंदर नफासत भरी हुई है, इसमें नजासत कुछ नहीं, इसके अंदर गलाजत कुछ नहीं। मैं इसके बरकत को क्या बयान करूं। आओ 40 साल मेरे नबी की जिंदगी, 40 साल सीरत बतला रहा हूं। आओ जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को काम दिया गया, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह का मिशन मिलना था। क़यामत तक आने वाले हर फर्द बशर को, हर फर्द जिन बशर को एक मिशन दिया जाना था। मिशन सीरतुन नबी दिया जाना था और इश्क़ रिसालत का मेयार दिया जाना था। 40 साल की जिंदगी अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की पाकीज़ा रखी। आपसे हर उस गुमान को खत्म कर दिया जो कभी दुनिया ये कर सकती है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप जिंदा होते, दुनिया कहती थी अरे मोहम्मद के बाप ने बड़ी अच्छी तरबियत की है। अल्लाह ने मोहम्मद के साये, मोहम्मद के सर से बाप के साये को उठा लिया, जो सारे जमाने का आसरा था, जो सारे जमाने का सहारा था, उसे बेसहारा कर दिया। आओ जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने और थोड़ा होश संभाला, आपने अम्मी जान के साये को उठा लिया ताकि कोई दुनिया में न कह सके मोहम्मद की तरबियत करने वाली उसकी माँ थी। आप थोड़े और बड़े हुए, दाई हलीमा को उठा दिया ताकि दुनिया की कोई जबान ये न कह सके कि मोहम्मद की तालीम हलीमा ने की है, मोहम्मद को तालीम हलीमा ने दी है। आप थोड़े और बड़े हुए, आप जब शऊर की तरफ आए, आपके दादा का साया उठा दिया गया और ताकि दुनिया ये न कहे कि अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद की तरबियत की है। हाय मेरे रब की गैरत को मैं कैसे बयान करूं। उसने मोहम्मद के साथ में किसी दुनिया की चीज को बर्दाश्त न किया। उसने 40 साल मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी साफ और शफाफ रखी। अब उम्मत मुस्लिमा के लिए सीरतुन नबी का पहला दिन शुरू होता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आपको नबूवत दे दी गई, जब आपको नबूवत के लिए बैसत के लिए मुंतखब कर लिया गया, आपको ऐलान कर दिया गया, आपको कह दिया गया है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, ऐ प्यारे नबी जी पढ़िए अपने रब का नाम लेकर। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तमाम मक्का वालों को जमा किया। सारे मक्का के लोग जमा हुए, सारे मक्का के इंसान जमा हुए, सारे जिन्नात जमा हुए। मेरे नबी ने फरमाया, उन मक्का वालों से पूछा जिसमें अबू लहब भी था, जिसमें अबू जहल भी था, जिसमें अबू बकर सिद्दीक भी थे, अम्मा खदीजा भी थी और सारे के सारे मुशरिकीन मक्का थे, सरदारान कबीला थे, सारे के सारे लोग वहां पर पहुंचे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पूछा, ओ मक्का वालों, अगर मैं मोहम्मद तुम्हारे निगाह में कैसा हूं। मक्का की सारी अवाम ने, सारे इंसानों ने, सारे जिन्नातों ने एक जबान होकर कहा, ऐ मोहम्मद हमने तुझसे ज्यादा सच्चा इस जमीन पर किसी को नहीं देखा। ऐ मोहम्मद हमने तुझसे ज्यादा हयादार आंखें इस जमीन पर किसकी नहीं देखी। ऐ मोहम्मद हमने तुझसे ज्यादा बाखलाक इस जमीन पर किसको नहीं पाया। ऐ मोहम्मद हमने तुझसे ज्यादा ईमानदार इस जमीन पर किसको नहीं पाया। ऐ मोहम्मद हमने तुझसे ज्यादा अमानतदार इस जमीन पर किसको नहीं पाया। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को एतमाद हो गया, मैं सीरतुन नबी का पहला दिन बतला रहा हूं जो मुझसे आपसे दरकार है, जो सीरत मुझसे आपसे तकाजा करती है, हर मोड़ पर आवाज देती है, आओ है कोई मुझे अपनी जिंदगी में सरायत करने वाला, है कोई 21 सदी का वो गय्यूर, वो आशिक रसूल जो मुझे अपनी जिंदगी में जगह दे दे। हाँ मैं वो पहला दिन बतलाने जा रहा हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सबको जमा किया और कहा, ओ मक्का वालों, अगर मैं तुम्हें किसी चीज से डराऊं तो क्या तुम डर जाओगे। सबने एक जबान होकर कहा, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, अगर आप हुक्म दे इस पहाड़ के पीछे कोई लश्कर है और मक्का वालों पर हमला करना चाहता है, ऐ मोहम्मद हम आपकी बात को यकीन जानेंगे, अपनी दिफा के लिए तैयार हो जाएंगे, हम आपको सच मानेंगे, हम आपने कभी जिंदगी में झूठ नहीं कहा। मक्का में किसी कान ने आपसे झूठ बोलते हुए नहीं सुना, मक्का में किसी आंख ने आपको खयानत करते हुए नहीं देखा, हम आपकी हर बात को कबूल करेंगे। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को एतमाद हुआ, आपने सारे मजमे से कहा, मेरी बात का बुरा मत मानना। तबलीग वाले भी आपसे ऐलान करते हैं, आपसे कहते हैं, जमात वाले भी आपसे कहते हैं, आओ मस्जिदों में आओ, ईमान वालों ईमान को बनाओ। मेरे नबी की सीरत का पहला दिन है। आपने फरमाया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला
आपने सीरत बहुत सुनी होगी, आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश सुनी होगी, आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफात सुनी होगी, आपने आपका बैठना सुना होगा, आपने आपका चलना सुना होगा, आपने आपके निकाह सुने होंगे। आओ मैं सीरत का वो पहलू बतला रहा हूँ जिस पहलू पर मुझको आपको चलना लाजमी है, जिस पर अमल करना मेरे जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, जो मेरी जिंदगी का मेयार और मेरी कामयाबी का जामिन है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐलान किया और कहा या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। आओ देखो यहाँ से इंसानियत तकसीम हो गई, हकीकी मोहब्बत करने वाले वो अलग निकल गए, हाय जश्न मनाने वाले वो आपको गालियां देने लगे। वो जिसने आपकी पैदाइश पर जश्न मनाया, अबू लहब जो आपकी पैदाइश की खुशी में मक्का में सरे बाजार घूम रहा था, आतिशबाजी कर रहा था, सबसे पहले उस मलऊन के जबान से जुमले निकले फैलक या मोहम्मद नऊज़ु बिल्लाह, मोहम्मद तेरे लिए हिलाकत हो कि तूने इस दिन के लिए हमको जमा कर दिया। आओ सीरतुन नबी अब शुरू हुई, मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए हालात तब्दील हो गए। अभी तक जो सारा माशरा आपके साथ खड़ा था वो आपके खिलाफ खड़ा हो गया। वजह क्या है? वजह मिशन है। वजह क्या है? वो कार्य नबूवत है जिसकी वजह से आप नबी बने, वो काम है जिसके लिए आपको नबूवत दी गई, वो मकाम है जिसके लिए आपको मुंतखब किया, वो काम अब शुरू हुआ। आपने जैसे ही कहा सारा मक्का आपके खिलाफ हो गया। आज का मुसलमान भी तो यही चाहता है ना, हम सीरत के जलसे जरूर करें लेकिन हम अपने माशरे में सीरत को लाने के लिए तैयार नहीं। सीरत जिंदगियों में सरायत करने का नाम है। हाँ, जब सीरत जिंदगी में सरायत कर जाती है तो उस माशरे से सच्चों का ईमान निकलता है। जहां पर सच का कोई तसव्वुर नहीं था उस माशरे से हया का ईमान निकलता है। जहां पर बेहयाई सर चढ़कर बोला करती थी वहां से उस बुज़दिल माशरे से बहादुर और इंसाफ कायम करने वाले लोग मिलते थे। जिस माशरे में बेहयाई और जुल्म ज़्यादती आम हो जाती थी उस माशरे से सीरतुन नबी का कमाल बतला रहा हूं। उस माशरे से लोग बहादुर मिला करे, उस माशरे से बहादुर लोग मिले हैं जहां पर बुज़दिली उनके सर चढ़कर बोला करती थी। आप जानते हो इश्क़ रिसालत का मेयार क्या है? आप जानते हो सीरतुन नबी का तकाजा क्या है? आपसे इन हालात में आपसे तकाजा करती है आप झूठ बोलना छोड़ दे। आज का मुसलमान झूठ बोलना नहीं चाहता लेकिन अल्लाह की मदद चाहता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिमायत चाहता है, जामे कौसर पीना चाहता है, ईमान पर मरना चाहता है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक। मेरे नबी ने फरमाया मेरी जान आप पर कुर्बान, सूरज गलत निकल सकता है, सूरज दुनिया के सारा निजाम तब्दील हो सकता है, मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। सच निजात है, झूठ हिलाकत है। आज का मुसलमान कितना समझता है कि सच्चाई मेरे लिए कामयाबी का ज़ामिन है। आओ मैं सीरत को माशरे में लेकर आया। आओ देखो माशरे में सीरत को ढूंढो। आओ सीरत किताबों में ढूंढने की चीज नहीं है, सीरत किताबों में मुताला करने की चीज है, माशरे में फैलाने की चीज है, सीरत को कुरान से निकालने की चीज है, इंसानियत और जिन्नातों तक पहुंचाने की चीज है। आओ मैं सीरत को माशरे में लेकर आया। सीरत कहती है अपने निगाहों को नीचा रखो, अपने निगाहों में हया को रखो। आज के मुसलमान की निगाहों को देखो, मेरी निगाहें आवारा हो चुकी हैं, मेरी निगाहें बेहया और बेपर्दा हो चुकी है, मेरी बेटियां भी बेहया और बेपर्दा हो चुकी है। कसूरवार कौन है? आपका माशरा किससे बनता है? जिन्नातों से नहीं बनता, फरिश्तों से नहीं बनता, माशरा मुझसे आपसे बनता है। मैं आप चाहते हैं माशरा तामीर हो जाए, अल्लाह के नबी की सीरत आम हो जाए, मैं कुछ कुर्बान न करूं। हाय अफसोस मेरी सोच पर, हिलाकत हो मेरे लिए। अगर घर बैठे दीन आम हो जाता, घर बैठे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी आम हो जाती। मैंने सीरत का पहला दिन बतलाया हूं, वो सीरत का पहला दिन आपने ऐलान कर दिया। मैं सीरत की बात बतला रहा हूं, सीरत कैसी चलेगी, तरक्की कैसी होगी, मुसलमान कामयाब कब होगा, मुसलमान नाकाम कब होता है, मुसलमान कामयाब कैसे होगा, मुसलमान नाकाम क्यों है, मैं मुझे बतलाने चला हूं। माशरा तब्दील कैसे होगा, मैं काम बतला रहा हूं। काम करने का है, जो करेगा वो उसका फल पाएगा, नस्लों में पाएगा, जो नहीं करेगा वो पछताएगा, खुद भी हाथ धोएगा, नस्लों को भी ईमान से हाथ धुलाएगा। हालात मेरे आपके दरवाजे पर आ चुके हैं, अब वो दिन दूर नहीं। मैंने आपने ताशकंद, समरकंद, बुखारा की तारीखें पढ़ी, हम बड़े उसके साथ कहते हैं हाँ बुखारा में ऐसा दर्स हुआ करता था। एक जमाना बुखारा ने ये देखा है, और बुखारा की सरजमीन कभी ये तसव्वुर नहीं कर सकती थी जिसमें जहां पर बैठकर इमाम बुखारी दर्स देते हो और 2 लाख तलबा उनके दर्स में बैठते हो, वो जमीन कभी ये तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि इस्लाम के नुकूश हमारे यहाँ से मिटा दिए जाएंगे, हमारे यहाँ अल्लाहु अकबर की
सदाओं पर पाबंदी लगा दी जाएगी। वो ज़मीन कभी तसव्वुर नहीं कर सकती थी। हमारे यहाँ पर मस्जिदों के मीनार गिरा दिए जाएंगे। हाँ, उन्होंने हालात देखा है, बुखारा की ज़मीन ने देखा है, कोई एक ज़माना उसके ऊपर ऐसा आया है, आज भी वहाँ पर बेहयाई सर चढ़ कर बोलती है। जिस सरजमीन पर इमाम बुखारी जैसा आदमी मदफन हो, वो ज़मीन कितनी मुबारक और मुकद्दस है। वो ज़मीन के हवाल अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि जब दीन की नाकदरी होती है, जब इंसान और उम्मत मुस्लिमा दीन के कामों से सरंजाम हो जाती है, अनजान हो जाती है और नादान हो जाती है, तो फिर उसके हालात तब्दील हो जाते हैं। आओ मैं सीरतुन नबी बतला रहा हूँ। माशरा तब्दील करना चाहते हो? हाथ उठाकर बताओ। अरे बोलो, माशरा बदलना चाहते हो? अमानतदारी लाना चाहते हो? धोखे से माशरे को पाक करना चाहते हो? बेईमानी को खत्म करना चाहते हो? निफाक को खत्म करना चाहते हो? बुज़दिली को खत्म करना चाहते हो? हराम कारियों को खत्म करना चाहते हो? जुल्म बर्बरियत को खत्म करना चाहते हो? आओ मेरे नबी की तदबीर को देखो, मेरे नबी की सीरत को देखो, आओ मेरे नबी के तर्ज अमल को देखो। आप नाउम्मीद और मायूस नहीं हुए। जैसे ही सारा मक्का आपके खिलाफ हो गया, हालात बदल गए, हालात खराब हो गए, क्या हुआ? अब मोहम्मद के साथ खड़े रहने वाला कोई नहीं था। अब आपके साथ में अम्मा खदीजा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, कुल 3 लोगों की जमात है। आपने काम शुरू कर दिया। सीरतुन नबी बतला रहा हूं। फिर आपने ये ना कहना कि इन्होंने तो तबलीग बयान करके चले गए। मैं तबलीग नहीं बयान कर रहा हूं। आप चश्मा लगाओगे तबलीग का तबलीग नजर आएगी, आप चश्मा लगाओगे सीरत का सीरत नजर आएगी, आप चश्मा लगाओगे इस्लाम का इस्लाम नजर आएगा, आप चश्मा लगाओगे तनकीस का आपको उसमें तनकीब नजर आएगी। आप जिस किस्म का चश्मा लगाओगे वैसे ही नजर आएगा। सूरज चाहे कितना ही पीला हो, कितना ही तमाजत वाला क्यों ना हो, काला चश्मा लगाया जाएगा, उसकी रोशनी की तासीर तब्दील, उसकी रोशनी की दिखने का असर तब्दील हो जाएगा। हरा लगाया जाएगा, सब्ज नजर आएगा, लाल लगाया जाएगा, लाल नजर आएगा, सोचे तो काला लगाया जाएगा, सब कुछ काला नजर आएगा। हाँ मेरे प्यारे, सीरतुन नबी को जिस चश्मे से लगा कर देखोगे वही आपको नजर आएगा। हर चीज के 2 रुख होते हैं। बताओ, कुरान से ज्यादा कोई मोहतरम मुकर्रम किताब है? अरे बोलो ना, क्यों खामोश हो? अरे बोलो, इससे ज्यादा मुकद्दस कोई किताब है? मेरे रब के इज्जत की कसम, अगर कोई कुरान की बेहुरमती करे, मेरी जान कुर्बान, मैं उसकी जान ले लूं। लेकिन मैं और आप, मैंने कुरान को कभी देखा है? कुरान कहता है यहदी बिही कसीरा व युदिल्लु बिही कसीरा। हाँ, अजीब बात है। कुरान कहता है हम इस हिदायत की किताब से बहुत सारों को हिदायत याफ्ता बना देते हैं और बहुत सारों को गुमराह कर देते हैं। मेरे प्यारे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को उस चश्मे से लगा कर देख। दिल से इश्क की रिसालत के साथ में चश्मा लगा। मोहम्मद के सच्चे इश्क के साथ चश्मा लगा। मोहम्मद के सच्चे इश्क को दिल में बसा। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी देख, फिर समझ में आएगा। अबू बकर सिद्दीक का दारे अरकम में बैठकर वो मस्जिद की जमात का कायम करना, वो मशवरे का करना, वो अबू बकर सिद्दीक को जमा करना, अबू जर को बुलाना, वो ज़ैद बिन अरकम को बुलाना, अलीउल मुर्तज़ा को बुलाना, बिलाल हबशी को बुलाना, खब्बाब व खुदैब को बुलाना, ये सब क्या था? ये सारा का सारा माशरे में इनकलाब बर्पा करने के लिए मेहनत थी। माशरे से झूठ खत्म करने की मेहनत थी। माशरे से फसाद खत्म करने की मेहनत थी। ईमान को कायम करने की मेहनत थी। इंसाफ को कायम करने की मेहनत थी। जुल्म के खात्मे की मेहनत थी। बर्बरियत के खात्मे की मेहनत थी। आज फिर मुसलमान चाहता है माशरे से जुल्म खत्म हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मेहनत को इख्तियार कर ले। मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत पर अमल पैरा हो जा। मेरे रब के इज्जत की कसम, इखलास के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलेगा, इश्क़ रिसालत के साथ चलेगा, अपनी आंखों से देखेगा। तेरे घर में अल्लाह का वली पैदा होगा, तेरे माशरे में अल्लाह वाले पैदा होंगे, तेरे माशरे में वो दिन आएंगे, वो दिन आएंगे, लोग तेरे घर में इस जवान बेटियों को छोड़कर जाएंगे इस उम्मीद के साथ कि इन पर कोई आंख उठाने वाला नहीं होगा। और जब सीरत से गफलत बढ़ती जाएगी, मेरे प्यारे, ये दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं। अभी बेटियां अगियार के दामन को थाम रही हैं। अगर इसी गफलत के साथ जीता रहा, इसी बेहिसी बेमर्दगी की हालत में जीता रहा, वो दिन दूर नहीं। मेरी आपकी औरतें अपने घरों को छोड़कर, अपने शौहरों को छोड़कर, अपने दीन को छोड़कर अगियार के दामन को थाम ले। इसलिए कि आज के शौहर ने उसके बीवी को माल सिखलाया है, माल बतलाया है, सोना सोने की अहमियत बतलाई है, जेवर जेवर की हिफाजत बतलाई है, उसे नहीं बतलाया मेरी महबूबा अल्लाह के दीन
پر چل, اللہ کے دین کے, اللہ کے حکم کو پورا کر, محمد رسول اللہ کی زندگی کو اپنا لے, اما عائشہ کے مطابق زندگی گزار, تو کامیاب ہو جائے گی. شوہر نے نہیں بتلایا, میں معاشرے کی کس خرابی کو بیان کروں, میں سیرت کے کس پہلو کو بیان کروں. محمد رسول اللہ کی سیرت کا پہلا دن تھا, آپ نے اگلا قدم اٹھایا. محمد رسول اللہ کی 13 سالہ مکی زندگی, جو سیرت 13 سالہ محمد رسول اللہ کی جو سیرت ہے, وہ پورے ہندوستان اور پورے عالم کے مسلمانوں کو یہ بات باور کرانا چاہتی ہے. اگر تو ایک اکیلا مسلمان ہے, ہمت نہ ہارنا. اگر تو ایک اکیلا عاشق ہے, ہمت نہ ہارنا. اگر تو ایک اکیلا مومن ہے, ہمت نہ ہارنا. میرے رب کے عزت کی قسم, تیرے گھر والے تیرے خلاف ہو جائیں گے, ہونے دینا. تیرے دوستانے والے تجھ سے دوستانہ توڑیں گے, توڑنے دینا. ساری دنیا تیرے قدموں میں آئے گی, شرط یہ ہے محمد رسول اللہ کے کام کے دامن کو مت چھوڑنا. ہم تو دامن ہی چھوڑ دیے, دعوے بہت بڑے بڑے, ہم عاشق رسول ہے. یقیناً میں عاشق رسول ہوں زبان کا. آؤ اگر عشق رسالت کا معیار چیک کرنا چاہتے ہو, چند دن پہلے میرے ملک میں ایک سانحہ گزرا, میں اس سانحے کو بیان نہیں کروں گا. اس کے بعد چند شہروں کے اندر احتجاج ہوئے, ان احتجاج میں نکلنے والے ان نوجوانوں کو پوچھو جو جذبے میں نکلے تو صحیح تھے, ایمان نہیں تھا, عشق نہیں تھا, جیسے ہی 2 ڈنڈے پڑے ساری حقیقت بھول گئے. نہیں صاحب, آپ جیسا بولے گے ویسا ہم کرنے کو تیار ہے, اس لیے کہ ہمارے دل میں عشق رسالت نہیں ہے, ہم تو ماحول کے بن کر نکلے تھے. مسلمان ماحول کا نہیں ہوتا, ایمان والا ماحول کا نہیں ہوتا, وہ جس ماحول میں جاتا ہے ماحول تبدیل کر دیتا ہے. ہائے افسوس میری دیوسی پر, ہائے افسوس میری بغیرتی پر, میرے معاشرے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا. محمد رسول اللہ کی زندگی کو چھوڑ کر رونا روتا ہوں ایجادات کا, رونا روتا ہوں تعلیم کے نقشوں کا, رونا روتا ہوں کالجز کا, رونا روتا ہوں باہر کے ماحول کا. ارے آؤ, تمہیں اگر ماحول اتنا متاثر کر دیتا تو تم نے کیوں اپنے گھر کے ماحول کو نورانی نہیں بنایا, تم نے کیوں اپنے محلوں کے ماحول کو نورانی نہیں بنایا. بتاؤ, میں پوچھنا چاہتا ہوں, جس معاشرے کے اندر کسی اونٹ کے پانی پی لینے سے پہلے اونٹ اس پر جھگڑے ہو جایا کرتے تھے, مرنے والا اس بات کی قسم دلا کر مرتا کہ تجھے لات کی قسم, عزا کی قسم, تجھے جب تک میرے خون کا بدلہ نہیں لینا تجھے مرنا نہیں ہے. اس معاشرے میں اگر صدیق اکبر پیدا ہو سکتا ہے اس محنت سے, تو آج کے معاشرے میں کیوں وہی ہے, محمد رسول اللہ کی سیرت وہی ہے, آپ کی زندگی وہی ہے, آپ کی سیرت کی تاثیر وہی ہے, آپ کی زندگی کے ہر عمل کی تاثیر وہی ہے. پھر محنت کا پھر ہمارے پاس نتیجہ کیوں نہیں؟ محنت کرنے والے کمزور ہیں. اگر میں اور کھل کر الفاظوں میں کہوں, میرے سینے میں نفاق ہے, میرے مجلس کی ایمان الگ ہے, میرے تنہائی کا ایمان الگ ہے. مجلس میں ایمان والا, تنہائی میں گناہ والا, مجلس میں اللہ کی کبریائی والا, تنہائی میں اسباب والا, مجلس میں محمد رسول اللہ کی محبت والا, تنہائی میں بیوی کے عشق والا, معشوقاؤں سے عشق لڑانے والا, دنیا کے عشق میں گھرنے والا, دنیا کے پیچھے دوڑنے والا. مجلس میں آ جاؤ, محمد رسول اللہ کے نام پر دم بھرتا ہوں, جیسے ہی تنہائی میں جاتا ہوں معشوقاؤں کے چکر لگاتا ہوں, موقع ملتا ہے لڑکیوں کو تلاش کرتا ہوں, عورتیں مردوں کو تلاش کرتی ہے. ہائے, یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے, یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے. بتاؤ, جس معاشرے میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں, میرے رب کے عزت کی قسم, اگر ایمان کا ذرہ بھی میرے پاس میں ہوتا, میری زندگی مجھ پر دوبر ہو جاتی, میری زندگی دشوار ہو جاتی, میری رات کی نیند ختم ہو جاتی, میرا چین ختم ہو جاتا, میرے اندر بے چینی بے قربی کا عالم پیدا ہو جاتا. آؤ, محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو. آپ 24 گھنٹے فکر کرنے والے, مغموم غمزدہ رہنے والے تھے. آپ غمزدہ کیوں تھے؟ آپ تو سارے نبیوں کے امام تھے, آپ تو سارے نبیوں کے سردار تھے, آپ تو خوش و خرم تھے, آپ کا مزاج خوش و خرم تھا, آپ کی طبیعت مغموم کیوں تھی؟ پتہ یہ چلا, ایک ایک فرد انسانیت کا دل میں افسوس اور احساس تھا, ہائے یہ بغیر ایمان کے اس دنیا سے جا رہا ہے, کاش کلمہ پڑھ لیتا جہنم سے بچ جاتا. میری بات کا برا مت ماننا, ابھی تو مسلمان کو جہنم کے بھیجنے کے چکر میں. اچھا ہے بولے بغیر ایمان کے مر گیا تو بہت ایسی ہونا تھا, اس کو ایسی کرتا تھا. کہاں چلے ہیں میں اور آپ؟ کون سا معاشرہ چاہتے ہیں؟ ارے اچھا, عزت والا, سربلندی والا, یا ذلت و خواری والا جس معاشرے میں اور آپ جیتے ہیں, جہاں پر سود خوری عام ہو چکی ہے, طلاق ذرا باتوں پر دی جاتی ہے, شراب خوری جہاں پر فیشن بن گئی ہے, جہاں پر نشہ خوریاں مختلف قسم کی جوانوں کا فیشن بن گیا ہے, اس معاشرے میں تم کامیاب ہونا چاہتے ہو. ایسے معاشرے میں اگر میں سلطان صلاح الدین ایوبی ڈھونڈ رہا ہوں, میرے رب کے عزت کی قسم مجھ سے زیادہ بیوقوف اس دنیا میں کوئی نہیں. کس معاشرے میں ڈھونڈ رہے ہیں؟
जहां पर फहाशी आम हो, नौजवान वहां का अय्याशी का दिलदादा हो गया हो, जहां का मालदार माल की वजह से लोगों पर जुल्म करता है, जहां का गरीब मुतकब्बिर हो गया है, उस माशरे से तुम ऐसी तवक्को करते हो कोई सुल्तान सलाहुद्दीन आएगा और जनाब हमारे मुल्क की क़यादत कर लेगा, कोई सुल्तान टीपू आएगा हमारे मुल्क की क़यादत कर लेगा। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, क्यों फिरका फिरका होता है, अब एक जमात पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत टुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम कदम तू बढ़ता है, हालात से फिर क्यों डरता है, या तो तू इस्लाम का नाम न ले, ये शौक शहादत पैदा कर, और शहादत का शौक बुज़दिलों के दिलों में नहीं आता, ईमान के बाद शहादत का शौक मिलता है। किन हालात पर आप खड़े हैं आप जानते हैं? क्या आप सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते? क्या आप व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक इस्तेमाल नहीं करते? क्या आप में के सब लोग अल्लाह वाले पारसा हैं जो आप जो है तो यूट्यूब के ऊपर जो है तो वीडियोस नहीं देखते, न्यूज़ें नहीं देखते? आप सब देखते हैं, समझते नहीं है। देखते सब है, समझता कोई नहीं। सब बड़ा, अगर देखो यहाँ पर अभी कल ही आपने देख लेना, जो मैं बात बोलूँ ना आपने, अब कल यहाँ चौराहों पर इस पर चर्चे शुरू हो जाएंगे, अरे बहुत अच्छा काम हुआ, अभी तक के होना था, ऐसा होना था, सब बातें करेंगे। उनसे बोलेंगे आओ सीरतुल नबी को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करो, सरायत कराओ, देखो सिद्दीक की सदाकत मिलेगी, उमर की अदालत मिलेगी, उस्मान की हया मिलेगी, अलीउल मर्तज़ा की बहादुरी मिलेगी। आओ मस्जिद में आ जाओ, मस्जिद को आबाद करो, आओ महल्लों में चलो, बेतलबों के पास बेगरज बनकर जाओ, चलो उनको समझाओ जो काम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 13 साल मक्की जिंदगी में किया। मैं सीरत के बहुत सारे पहलू स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वक्त बहुत कम है, इख्तिसार के साथ बताऊंगा। मैं फिर उसको मैं अपने उन्वान की तरफ चलाऊंगा। आओ तो आपने कल देख लेना, चर्चा करने वाले सब हो गए, मुज़ाकरे करने वाले सब हो गए, तबसरा करने वाले सब हो गए। आओ आपने मस्जिद को देख लेना, ये जलसा तब कामयाब होगा जब ये सारा का सारा मजमा कल से 24 घंटे मस्जिद का आदी हो जाए, अपने दुनियावी काम के अलावा सारा फारिग वक्त मस्जिदों में लगाए, जलसा कामयाब हो जाएगा। आपकी बस्ती पूरे दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए काफी है, अगर आप दिल पर ले ले। अगर अहले मदीना दिल पर न लेते, पूरे आलम में इस्लाम न फैलता। अहले मदीना छोटी बस्ती थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तकाजे को रखा, आपने समझाया ये काम ऐसा ऐसा है, आपको करना है, तो सारे मदीना वालों ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है, आप अगर चाहे हम अपने कलेजे निकाल कर आपके कदमों में रख देंगे, आप अगर चाहे हमारी जाने आपके कदमों में बिछा देंगे। आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे यहाँ आपका खैर मकदम है। अहले मदीना ने सिर्फ सीरत को बयानिया नहीं लिया, सीरत को अमली तौर पर लिया। सारी दुनिया में इस्लाम का मरकज क्या बना? अरे बोलो ना, मक्का से ज्यादा मुकद्दस शहर कोई नहीं, बैतुल्लाह से ज्यादा मुकद्दस घर कोई नहीं। मैं सीरत का पहलू बतलाने चला हूं। आपने जब काम किया, आपने देखा हालात मुखालिफ हो गए। हाँ, जब आप सीरत पर आओगे, जब आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के काम को अपनाओगे, जब आप माशरे की पाकीज़गी के लिए कदम उठाओगे, जब आप माशरे को तब्दील करने के लिए कदम उठाओगे, सारा समाज आपके खिलाफ आएगा। कहीं आपके अब्बा भी आपके खिलाफ आएंगे, कहीं मामू भी खिलाफ आएंगे, कहीं चचा और पप्पा भी आपके खिलाफ हो जाएंगे, हो सकता है आपकी बीवी भी आपके खिलाफ हो जाए। हाय तुम क्या कर रहे, तुमने तो नवा ही काम ला लिए, तुम तो दीवाने हो गए, तुम्हारे ऊपर मस्जिद का हो गया क्या, तुम्हारे ऊपर तबलीग वाला जिन्नात आ गया क्या, तुम रात दिन गश्तों में चले हैं, तुम रात दिन वहां जा रहे हैं, तुम रात दिन वहां, सारी दुनिया आपके खिलाफ होगी। आपने उनकी मुखालिफत की परवाह न करना, आपने मेरे नबी की जिंदगी को देख लेना। आओ जब आपको दुनिया फकरे कसे, आपने अबू लहब के उस फकरे को याद कर लेना, उस जुमले को याद कर लेना। अबू लहब कह रहा था, सारा मक्का सुन रहा था, किसी में जुरात हिम्मत नहीं थी। अबू लहब ने कहा वैलक या मोहम्मद, तेरे लिए हलाकत हो ए मोहम्मद, नऊज़ बिल्लाह। आपने याद कर लेना, नबी मेरे नबी से ज्यादा मुकद्दस कोई नहीं, मेरे नबी से ज्यादा मुबारक कोई नहीं, मेरे नबी से ज्यादा महबूब कोई नहीं, मेरे नबी से ज्यादा अजीम कोई नहीं। फिर मेरे नबी के लिए जुमले इस्तेमाल किए गए, सिर्फ जुमले इस्तेमाल नहीं किए गए, आपके रास्तों में कांटे बिछाए गए, आपने मेहनत नहीं छोड़ी,
आपने काम नहीं छोड़ा, आप पर ओझड़ी डाली गई, आपने काम नहीं छोड़ा। मैं सीरत के वो सारे पहलू इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूँ। कभी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके जिस्म से एक ओझड़ी को उठा रही है और दाढ़ी को साफ कर रही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी है। आपने वाक़या बहुत बार सुना होगा, सीरत के पहलुओं में नहीं सुना होगा, सीरत के दायरे में नहीं सुना होगा। मैं आज सीरत के ज़िमन में इसको बयान कर रहा हूँ। सीरत कहती है अगर तेरा महल्ला तेरे खिलाफ हो जाए, तेरा समाज तेरे खिलाफ हो जाए, तेरे अपने तेरे खिलाफ हो जाए, तेरे रास्तों में कांटे बिछाए जाए, तुझ पर जो है तो इल्जामात की बौछार लगा दी जाए, तेरे रास्तों को मसदूद कर दिया जाए, तेरे कारोबार को लूट लिया जाए, तुझको पीट दिया जाए, ओ मेरे महबूब, ओ मेरे रब के बंदे, तूने मायूस मत होना। ओ मेरे नबी के चाहने वाले, तूने नाउम्मीद मत होना। मेरे नबी के सीरत के उस पहलू को देख लेना। मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे थे, ओ मेरी बेटी थोड़ा तू सब्र कर ले, थोड़ा तेरा बाप सब्र कर लेता है। तू देखेगी, तू देखेगी, करीब तू देखेगी, सारे दुनिया का हर कच्चे और पक्के मकान में तेरे बाप का लाया वो दीन दाखिल हो जाएगा। लोग चाहे इज्जत के साथ कबूल करे या जिल्लत के साथ कबूल करे। लोग समझते हैं तबलीग की मेहनत। अब तुम बोल रहे होंगे स्टेज जमीयत का, बात इस्लाह माशरे की और बात कर रहे तबलीग की। मेरे बुजुर्गों, आप सारी दुनिया के अंदर घूम लेना। मेरी जिंदगी जितनी भी है, मैंने जितना तज्जिया किया, जितना तजर्बा किया, मैंने तबलीग से ज्यादा मुखलिस मेहनत इस सदी में मुसलमानों की नहीं पाया। और मैं अपनी जबानी नहीं कर रहा हूँ। हज़रत मौलाना अली मियां साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू ने एक अजीब बात लिखी तारीख़ दावत और अज़ीमत के अंदर, 5 जिल्दों में किताब है। हज़रत ने उसमें लिखा कि जो दुनिया जलालत और गुमराही के इतने निचले मकाम पर इसलिए पहुंची कि 1000 साल तक के वो सीरतुन नबी, मिशन सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत से इज्तिमाई तौर से मफकूद रहा। लेकिन अल्लाह पाक ने आज से 100 साल पहले हजरत जी मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू के जरिए से फिर उस मेहनत को शुरू किया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में खुद किया। ये तबलीग वालों का मशवरा आपको ऐसा लगता होगा ना कोई 4-5 लोगों ने बैठकर तय कर दी। नहीं, आओ सीरत देखो, दारे अरकम की हैसियत तो देखो। अरे दारे अरकम का नाम सुना है? किसने सुना? हाथ उठाकर बोलो। जब भी सीरत की बात होगी, दारे अरकम के बगैर सीरत मुकम्मल नहीं होगी। सीरत की शुरुआत ही दारे अरकम है। दारे अरकम एक ठिया था जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर रोज आना रात में, अगर तबलीग वाले इशा के बाद मशवरा करते ना तो ये भी अमल खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी से साबित है। जानते हो, आप सारे लोगों को बुलाते थे जब सूरज गुरूब हो जाए, अंधेरा गहरा हो जाए तो तुमने ज़ैद बिन अरकम के घर पर आ जाना, तन्हा तन्हा आना, फर्दन फर्दन आना, इनफरादी आना, इज्तिमाई शक्ल में मत आना, जमात की शक्ल में मत आना। जब घर से निकलोगे इनफरादी निकलना, अकेले अकेले निकलना। और जो तो अल्लाह के रसूल बतला रहे मशवरा, मैं माशरा बनाना है मुझको। आपको क्या बनाना है? बोलो ना, अरे बोलो ना। इश्तिहार से बनेगा? अरे बोलो ना। व्हाट्सएप से बनेगा? यूट्यूब से बनेगा? जलसों से, इजलासात से बनेगा? एहसास कितनी देर का मैंने बयान किया, मौलवी साहब ने बयान किए, बहुत बयान हो गया, दिल झंझोड़ने वाला था, ये था जनाब। इसमें से आधा मजमा वो है जिसने इशा पढ़ा नहीं और वो पढ़ेगा भी नहीं। एहसास बहुत करेगा, ये एहसास नहीं है, एहसास अमल का एहसास है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये माशरे को बनाने की मेहनत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की जिंदगी बतला रहा हूँ सीरत की, सबको बुलाया कि अंधेरे में आना ताकि कोई देख ना ले। तन्हा थे, मुख्तसर लोग थे, छोटी सी जमात थी। आप भी जब मस्जिद के आदी बन जाओगे, आप भी जब मशवरे के आदी बन जाओगे, आप भी जब महल्ले में चलने फिरने वाले बन जाओगे, इंसानियत का दर्द तुम्हारे सीनों में जागेगा। फिर इस बेदीनी पर चलने वाली इंसानियत की तड़प तुम्हारे दिलों में पैदा हो जाएगी। ये तड़प आपको सच्चा इश्क रिसालत और अल्लाह का ताल्लुक दिलाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी के अंदर आपने एक फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट दिया, झूठ को माशरे से पाक करने का, जुल्म को पाक करने का, बर्बरियत को पाक करने का और जबर को खत्म करने का, बेहयाई को खत्म करने का। आपकी तनकीद तफसीरों से माशरा पाक नहीं होने वाला। मुझको आपको उस मैदान में उतरना है। करना क्या है? वो जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती है। आपने एक मस्जिद की जमात की बुनियाद रखी, बैतुल्लाह में काम नहीं कर सकते थे, नमाज नहीं पढ़ सकते थे, इबादत नहीं कर सकते थे, दारे अरकम का इंतखाब हुआ। सारे मक्का और जो वो लोग जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पर ईमान लेकर आते, उनको जमा किया जाता, उनसे पूछा जाता, अबू बकर आज किससे मुलाकात की है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने दिन भर की कारगुजारी सुनाते, या रसूलल्लाह मैं फला से मिला और मुझे ये खबर लगी है मदीना से कोई काफिला आया है। या रसूलल्लाह वो ताजिर लोग हैं, वो अहले इल्म लोग हैं, वो ज़ी शऊर लोग हैं। मेरी चाहत ये है आप चलकर उनसे बात करें। मैं रहबर होगा,
रसूलुल्लाह आपने मुतकल्लिम होना मशवरे में तय हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह मुतकल्लिम बने, अबू बकर सिद्दीक वो रहबर बने, आप गए मदीना के काफले से मिले, जब बात हुई पता ये चला कि हिदायत उस गश के अंदर छुपी पड़ी थी मदीना की। मैंने आपने मेरी बात को बुरा मत मानना भाई, अगर किसी की बात को मेरी बात बुरी लगे मैं उससे दिल की गहराइयों से माफी चाहता हूं, लेकिन ये वो हकाइक है जो आपको सीरतुन नबी में जा बजा नजर आएगी। 13 साल आपने मेहनत की, रोजाना आप मक्का के बाजारों में घूमते, गलियों में घूमते, कभी ताइफ के अंदर जो है तो जाते, और कभी तो वो जो शोब अबी तालिब की कैदोबन की सोहबतों को बर्दाश्त करते। सारी गरज एक थी, दुनिया में बसने वाला हर फर्द बशर जहन्नम से बचकर जन्नत में कैसे चले जाए। और आज का मुसलमान सोचता है, सोच बदल गई, सारे मुसलमान जहन्नम में जाए मुझे एक को छोड़कर। तब्दील हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया माशरे को तब्दील करने का। हम चाहते हैं माशरा बदल जाए, लेकिन जलसों के जरिए माशरा बदल जाए, लेकिन इश्तहारात के जरिए माशरा बदल जाए, सोशल मीडिया के जरिए माशरा बदल जाए। यकीनन इन चीजों का किरदार है, इनका किरदार सिर्फ 2%, 98% किरदार मेरी अपनी जान का, मेरे अपने माल का, मेरे अपने ईमान का, मेरे अपने एहसास का, मेरी अपनी गैरत का, मेरी अपनी जुर्रत का। अगर मेरे पास जुर्रत नहीं है, मैं काम का नहीं हूँ, मेरे पास गैरत नहीं है तो भी काम का नहीं हूँ, मेरे पास ईमान नहीं है तो भी काम का नहीं हूँ, मेरे पास एहसास नहीं है तो भी काम का नहीं हूँ, मैं बेसूद हूँ, इस दुनिया के अंदर बस एक दयूस बनकर जी रहा हूँ। मैं माशरे को किस जुमले के साथ बयान करूँ कि हमारे पास में सूदखोरी आम नहीं होगी, लोग जानकर भी खा रहे हैं, अनजाने में तो बहुत लोग खा रहे हैं। मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ, वक्त हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का के अंदर रोजाना गश्त होता था, अमल होता था, 2 काम, इस्लाम माशरे का काम बतला रहा हूँ। जब आप मदीना मुनव्वर आए, हिजरत का हुक्म आया, आपका दिल नहीं चाहता था, अल्लाह का हुक्म हुआ, या मोहम्मद आपको हिजरत करना है, क्या करना है, बैतुल्लाह को छोड़ देना है। ऐ मेरे रब बैतुल्लाह को छोड़ना है, कि हाँ बैतुल्लाह को छोड़ना है। ऐ मेरे मौला ऐसे मुकद्दस शहर को मैं छोड़ूं? मेरे रब ने कहा कि बिल्कुल मोहम्मद तुम्हें छोड़ना है, आपको आपका आबाई वतन छोड़ना है, बैतुल्लाह भी छोड़ना है। कौन सा शहर, कौन सा घर, कौन सी मस्जिद? वो मस्जिद जहां पर एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर है। वो शहर जो दुनिया का सबसे मुकद्दस तरीन शहर है। वो शहर जहां पर आदमी हालत एहराम में चोटी नहीं मार सकता, मच्छर नहीं मार सकता, उस अमन वाले शहर को छोड़ना है। जाना कहाँ है? ऐ मेरे मौला जाओ यसरब की तरफ, जाओ मदीना की तरफ। ऐ मेरे मौला वो तो शहर, अरे वो तो कैसे, वो बुखार के नाम से जाना जाता है, दुनिया उससे कतराती है, अहले अरब वहां जाने से डरते हैं। मोहम्मद आपको जाना है, आपके गश्त की तासीर थी, आपकी मुलाकात का असर था। मक्का मदीना में ईमान फैलेगा, मदीना में माशरा तामीर होगा, मदीना का माशरा मॉडल बनेगा, मदीना का माशरा आइडियल बनेगा, मदीना से हुकूमत बनेगी, मदीना से निजाम चलेगा, मदीना से कुरान फैलेगा, मदीना से सीरत फैलेगी, सारा निजाम मदीना से चलेगा। आपको मदीना छोड़कर जाना है। अल्लाह के रसूल जब मक्का को छोड़ रहे हैं, बार बार बैतुल्लाह को देखते हैं, आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी है। बैतुल्लाह से खिताब करके फरमा रहे, ऐ बैतुल्लाह अगर मेरे रब का हुक्म न होता, मेरे इज्जत की कसम, मेरे रब की इज्जत की कसम, मैं कभी भी बैतुल्लाह को न छोड़ता। आज मेरे रब का हुक्म है, मैं मदीना जाऊंगा। आओ, जैसे ही सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुंतकिल होती है, दुनिया के मुसलमानों को, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को एक पैगाम देती है। आपका ताल्लुक मस्जिद से है, जब जब आप मस्जिद से जुड़ेंगे तब तब आप मस्जिद के खूंटे बनोगे, तब तब आपका निजाम मस्जिद में आएगा। मेरे रब के इज्जत की कसम, दुनिया की सल्तनतें तुम्हारी कदमों में आएगी, तख्त और ताज तुम्हारी कदमों में आएंगे, सुपर पावर तुम्हारे सामने ढेर हो जाएंगे। जब तुम मस्जिद के आदी हो जाओगे, जब तुम मस्जिद से मुताल्लिक हो जाओगे, जब तुम मस्जिद से मुंसलिक हो जाओगे, दुनिया का कोई सुपर पावर, कोई आंख तुम पर टेढ़ी नहीं होगी, कोई तलवार तुम पर नहीं उठेगी। आओ 21 सदी के मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये मस्जिद सदाएं देती है, मस्जिद आवाज लगाती है, आओ आओ हमको आबाद करो। अपने रब से कहती है, ऐ मेरे मौला मुझे जिसने आबाद किया तू उसे आबाद कर दे, मुझे जिसने बर्बाद किया मेरे मौला तुझे उसे बर्बाद कर दे। आओ मैं आपके मेरे घरों का हाल तू सुनता हूँ, मैं आपके मेरे घरों का हाल बतलाता हूँ। शौहर बीवी से नाराज है, बीवी शौहर से नाराज है, औलाद वालिदैन से नाराज है, वालिदैन औलाद से नाराज है। हर छोटा बड़े की बगावत पर उतर चुका है, हर बड़ा छोटे की दुश्मनी कर रहा है। वजह क्या है? किसी ने वजह जानना चाहा। कोई समझता है वो जाहिल है, कोई समझता है वो गरीब है, कोई समझता है वो कमजोर है। न कोई कमजोर है न कोई जाहिल है, वह बात वजह की ये है
ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، ہمارے گھرانے باوجود کثرت افراد کے ویران ہو چکے ہیں، ویران پڑے ہیں گھر مسلمانوں۔ آؤ محمد رسول اللہ مدینہ آئے، آپ نے اپنے لیے مہمان خانے کا انتخاب نہ کیا، ضیافت خانے کا انتظام نہ کیا، آپ نے سب سے پہلے مدینہ والوں سے کہا آؤ میں یہاں پر اللہ کے گھر کی بنیاد رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی جس کو مسجد قباء کہتے ہیں، اسلام کی مسجد۔ آؤ ہترول والو، ارے معاشرہ بنانا چاہتے ہو؟ ارے بولو نا، ہاتھ اٹھا کر بولو، معاشرہ بنانا چاہتے ہو؟ اب یہ عزم کر لو، جب تک جسم میں جان رہے گی، میری جان مسجد میں اٹکی رہے گی، جب تک میں چلتا پھرتا رہوں گا، مسجد کا عادی رہوں گا، اپنے سارے کام کو فارغ کر کے مسجد سے آ جاؤں گا۔ اللہ کے رسول آئے، مسجد کی بنیاد ڈالی، میں سیرت النبی بتلا رہا ہوں، آپ نے تو ابھی تک سنا ہوگا اللہ کے رسول کی ولادت کا یہ دن تھا، وفات کا یہ دن تھا، آپ کے اثرات یہ تھے، آپ کے برکات یہ تھے۔ خدا پاک کی قسم 1443 سال سے آج تک سیرت کو بولا جا رہا ہے، لیکن سیرت مکمل نہیں ہوئی اور قیامت تک نہیں ہوگی۔ آؤ میں معاشرے کے ساتھ میں سیرت النبی کو بتلا رہا ہوں، معاشرہ سدھرے گا کیسا، معاشرہ بنے گا کیسا، میری آپ کی بیٹیاں غیرت مند کیسی ہوگی، میری آپ کی بیٹیاں عائشہ والی زندگی کیسی اپنائے گی، میری آپ کی بیٹیاں فاطمی کیسی بن جائے گی، میری آپ کی بیٹیاں حیادار کیسی ہوگی، میری آپ کی بیٹیوں میں شہوانہ جیسی شخصیات کب پیدا ہوگی، میری آپ کی بیٹیوں میں حضرت خنسا اور خدیجہ جیسی بیٹیاں کیسی پیدا ہوگی۔ آؤ اپنے آپ کو مسجد سے متعلق کر لو، معاشرے کے سدھار کے 3 کام میں نے آپ کو بتلائے ہیں۔ روزانہ مسجد کے اندر مشورے میں شریک ہونا، روزانہ اپنے محلوں میں چل کر گشتوں کا کرنا، گشتوں میں چلو بغیر اس نیت کے ساتھ میں چلو میرا دنیا کا اس میں کوئی فائدہ نہیں، میرا اس میں دنیا کی کوئی غرض نہیں، میری دنیا کی کوئی چاہت نہیں، میری دنیا کی کوئی طلب نہیں، مجھے نہ عزت کی چاہت، مجھے نہ دنیا کی طلب، نہ مجھے مال کی طلب، نہ لوگوں کے فقروں کی غرض، نہ لوگوں کے فقروں کا احساس، میں تو اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کروں گا۔ جب اس کام کے ساتھ میں جڑ جاؤ گے، اصلاح معاشرے کے، تبلیغ کا کام نہیں بول رہا ہوں، نہیں تو آپ سمجھ لیں گے تبلیغ کا کام۔ ارے بولو نا، معاشرے کو پاک کرنا چاہتے نہیں چاہتے؟ ارے اغیار کے چنگل سے بیٹیوں کو بچانا چاہتے نہیں چاہتے؟ ارے اپنے مسجدوں کے مینار بچانا چاہتے نہیں چاہتے؟ اسلام کی عزت عفت کو بچانا چاہتے نہیں چاہتے؟ دین کے قلعوں کو بچانا چاہتے نہ چاہتے؟ اگر چاہتے ہو، آپ کا دل چاہے نہ چاہے، ان کاموں کو کرنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی مدد اس کے بغیر نہیں آنے والی۔ اللہ کی مدد کے بغیر میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ امت جذبات میں ہے، امت چاہتی ہے آؤ ہم مقابلے پر آ جائے، ہم بھی دیکھ لیں گے، ہم بھی کر لیں گے۔ یقیناً آپ کے جذبات بجا ہے۔ آؤ میں محمد رسول اللہ کی سیرت سے ایک جذبہ بتلاتا ہوں، جذبے کی قربانی کسے کہتے ہیں اور کام کسے کہتے ہیں۔ جذبات کو قربان کر کے کام کرنا یہ اصل چیز ہے، اور جذبات کو قربان کرتے رہنا اور جذبات کو جہاں نکالنے کا موقع ہے وہاں نکالنا یہ اصل چیز ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، سارے صحابہ جوش جذبے میں تھے، عجیب جذبہ، عمرے کے لیے جا رہے تھے، بیت اللہ جا رہے تھے، سارے حالت احرام میں تھے۔ اب وہاں پر مشرکین کو خبر پڑی، وہ لوگ آ گئے اور راستہ روک دیا گیا، کہا کہ محمد رسول اللہ اب آگے نہیں جا سکتے، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ سارے صحابہ جوش میں تھے۔ عمر ابن خطاب کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا کہا؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ کہو کہ اللہ کی مدد حق نہیں ہے، کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے بازوؤں میں اتنا زور ہے، ہم نے کہ ہر رشتہ دار ان کے ہمارے رشتہ داروں کو قتل کر دے گا، ہم ان کی اینٹ سیٹ بجا دیں گے، یا رسول اللہ آپ اجازت دے دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے، عمر تجھے بھی اجازت نہیں، علی تجھے بھی اجازت نہیں۔ کہا محمد رسول اللہ سے رسول اللہ کاٹ دو، علی سے کہا گیا رسول اللہ کاٹ دو، علی المرتضیٰ نے قلم کو پھینک دیا، میرے ہاتھ شل ہو جائے، رسول اللہ نہیں کاٹ سکتا، میں نے دل و جان سے آپ کو اللہ کا نبی مانا ہوں، اللہ کا رسول جانا ہوں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، میں خاتم النبیین کا عقیدہ بھی بیان کرنے چلا ہوں۔ اللہ کے تعالی کہہ رہے ہیں نہ ہمیں نہ اپنے عقیدے میں اتنی بھی گنجائش کو برداشت نہیں کر سکتا کہ محمد رسول اللہ کے نام کے آگے سے رسول اللہ کو ہٹا دوں۔ آج کا مسلمان تو فرٹیلائزر نبی، ڈپلیکیٹ نبی جو آ رہے نا ان کو بھی نبی تسلیم کر لے رہا، نعوذ باللہ، ایمان کی کمزوری الگ عنوان ہے، پھر کبھی اللہ موقع دے گا تو اس پہ بات کروں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کو کاٹ دیا، محمد بن عبداللہ کر دیا۔ اب صلح ہو رہی ہے، محمد بن عبداللہ آپ کے پاس ہمنے کا کوئی فرد مدینہ آئے گا، کلمہ پڑھ کر آئے گا، خود سے چل کر آئے گا، اللہ کی ہدایت یافتہ آئے گا،
आप उसको मदीना में नहीं रख सकते, उसको लौटाना होगा। हाँ, आप में का कोई फर्द इस्लाम से फिर कर दायरे कुफर में आएगा, आप हमसे मुतालबा नहीं कर सकते। ये शराइत के ऊपर सुलह हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह कर लिया। जब पर सुलह की गई, सारा जमाना समझ रहा था मोहम्मद नाकाम हो गए, सारा जमाना समझ रहा था मोहम्मद नौज़ुबिल्लाह नामुराद हो गए, आपकी जमात नामुराद हो गई। हाय मेरी जान कुर्बान मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। आप जब लौटने वाले थे, आपने देखा सहाबा से कहा हलक कर लो, कोई हलक करने के लिए तैयार नहीं था। ज़ौजा मोहतरमा के पास गए, कहा मैं क्या करूं, मेरे सहाबा इतने जज्बात में हैं, इतने गमगीन हैं, जैसे आज की उम्मत का हाल है, इस मुल्क के मुसलमानों का हाल है। अगर क़यादत कहीं पर खामोश होती है, उम्मत नाउम्मीद और मायूस हो जाती है। हिंदुस्तान का मुसलमान समझता है हमारे लिए कोई सहारा नहीं है, साया नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, सहारा भी है, साया भी है। शर्त यह है मुसलमान तो बने, अल्लाह की मदद भी है। अल्लाह के रसूल से ज़ौजा मोहतरमा ने कहा, ऐ मेरे सरताज, मेरी जान आप पर कुर्बान, ये आपके नकल करने वाले लोग हैं, आप इनके सामने दरमियान में बैठ जाए, सबसे पहले आप अपना हलक कर ले, आप देखेंगे इनकी चमड़ियां ये उधेड़ देंगे। खुदाए पाक की कसम, मेरे रब के इज्जत की कसम, मोहम्मद रसूलुल्लाह जब सहाबा के दरमियान में जाकर बैठे, आपने हलक फरमाया, सहाबा ने इस तरह से हलक फरमाया कि चमड़ी तक उधर डाला, उनको एहसास न हुआ, सर खून आलूद हो गया मोहम्मद रसूलुल्लाह के अमल की नकल करते हुए। और आज मेरी बात का बुरा मत मानना, अल्लाह के रसूल की नकल करने को मुसलमान तैयार नहीं। नौजवान चेहरे पर से दाढ़ी काटता क्या नहीं काटता, उसे कभी एहसास भी नहीं होता। जिंदगी के 40 साल 50 साल निकल गए, उसे एहसास ही नहीं मैं सुन्नत को तर्क कर रहा हूँ। वहाँ सहाबा का यह आलम था। अब जब सहाबा ने देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत सुलह भी कर लिया, हलक भी कर लिया, अब जो है तो ये हुआ कि सब लौटने वाले थे, सहाबा आपके नक्शे कदम पर चलने वाले थे। अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान हो गया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। क्या करे, जंग लड़े, अरे बोलो ना, तलवारें उठाए, अल्लाह की तरफ से ऐलान हो गया। आज का मुसलमान भी अगर चाहता है अल्लाह की मदद हमारे साथ में हो तो दावत के काम को इस्लाह माशरे का काम समझकर करें। अगर आप दावत का काम नहीं समझकर करना चाहते तो कम से कम ये समझे कि मेरे घर की मेरी इज्जत बचाने के लिए, अपनी नस्लों को ईमान पर बचाने के लिए, अपने नस्लों के ईमान को जिंदा रखने के लिए, उसके हिफाजत के नक्शों को कायम करने के लिए मैं जो है तो ये इस काम को करूंगा। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से आप देखोगे अपने घरों में ईमान के नक्शों को कायम करोगे। वरना अभी 2 साल 3 साल पहले अपने यहाँ पूरे मुल्क में एक सर्वे कराई थी जमीयतुल माहिन ने। उस रिपोर्ट के अंदर बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है। मौलाना महमूद मदनी ने सन 2021 के जो पहला आमेला का इजलास हुआ था उसमें हजरत ने रिपोर्ट पेश की और बहुत अफसोस के साथ में रिपोर्ट पेश की। कहा कि इस मुल्क का 70% मुसलमान एक झटके में मुर्तद हो जाएगा। कितने झटके में, अरे बोलो ना, थोड़े से आपने देखा नहीं देखा हरियाणा में और मुख्तलिफ सूबों के अंदर राशन कार्ड नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, पूरा खानदान इस्लाम छोड़कर चला गया। किसी ने किसी के साथ में ज्यादती कर दिया। मैं वो हरियाणा की बात नहीं करता, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ। एक देहात है पड़ोस की तहसील के अंदर, वहाँ का एक पूरा कबीला मुर्तद हो चुका था, पूरा कबीला। वजह क्या थी पता है आपको? लोग उससे हसद करके उसकी बेटियों के रिश्ते नहीं होने देते थे, एक वजह। दूसरी वजह वो बहुत गरीब था, उसको मुसलमान मजदूरी भी देता तो एकदम कसम पुरसी किया, लेकिन वो खुददार आदमी था। वो बहुत लोगों के पास में घुमा। मैं ये बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, अभी कोविड के ज़माने की बात बतला रहा हूँ। ये मेरे साथ में वाक़या हुआ खुद। उसकी कारगुजारी जब उसके ऊपर, उसकी बहुत बड़ी तैयारी थी, पूरी की पूरी बहुत बड़ी न्यूज़ बनती थी अगर वो अल्लाह उसके दिल में बात नहीं डालता था। हमारी आपकी सबकी नाक कट जाती थी, पूरे इलाके के मुसलमानों की। बहुत बड़ी तैयारी, पूरे दूर दूर से लोग आने वाले थे उनके परिवर्तन के अंदर। उन्होंने प्रोग्राम भी सब सेट कर लिए थे। एक तबलीग वाला बेचारा जिसको हम सीधा साधा समझते, दीवाना समझते, पागल समझते, मजदूर समझते, रिकामा समझते, निकम्मा समझते, पता नहीं क्या क्या समझते हम, वो बेचारा उसके पास में गया। उसको जब मालूम हुआ, उसको खबर नहीं थी, जब मालूम हुआ उसके पास में, उसको समझाया। वो जब तो होते ही बेचारे तबलीग वाले ऐसे अपनाइयत से बात करते कि लोग दिल की बात, दिल निकाल कर उनके सामने रख देते हैं, जो दिल जले होते हैं ना तबलीग में। उससे जब तो उसने पूरे अहवाल उसको सुनाया। उसने मुझसे रब्ता किया कि मौलाना ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। उसको बोलना तेरी बेटियों की हम रिश्ते भी कराएंगे, शादी भी कराएंगे, तेरे जो भी मसले अल्लाह हल करेगा, हम कुछ नहीं, हम कोशिश करेंगे। उसको मेरे पास में लेकर आओ। हमारे पास में आए, वो मिले जुले, उनसे मुलाकात हुई। उनके जो भी हमने वो थे, वो कह रहा था कि मैं मुसलमानों से बदजन और बदगुमान हो गया, इसलिए कि मेरी ऐन मजबूरी के टाइम पर लोगों ने फ़ायदा उठाया। ये माशरा है मेरा आपका।
میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے کتنے لوگ ہیں معاشرے میں جو دکھی ہوں گے، جن کا دل کہتا ہوگا یار میں کس سماج میں پیدا ہو گیا۔ میرے بزرگوں، مجھ کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ معاشرہ خود بخود تبدیل ہو جائے گا، اس لیے کرے گے سب کے سب کام۔ جمعیت علماء کی ہر چیز پر آواز لبیک کہو گے؟ جمعیت علماء جانتے کہ نہیں جانتے؟ اصل میں عنوان ایسا تھا، وقت مختصر تھا، اس لیے میں تعارفی بات نہیں کر سکا، پھر کبھی اللہ موقع دے گا انشاءاللہ۔ ویسے 8 نومبر کو اپنے یہاں جمعیت علماء کی طرف سے بالاپور میں ایک بہت بڑا اجلاس ہے، اس میں آپ لوگ بھی پہنچے، جتنی کثرت سے آپ پہنچنا چاہتے ہیں پہنچ سکتے ہیں آپ پہنچے، وہاں پر انشاءاللہ جمعیت کی کارگزاری بھی آئے گی اور جمعیت کے بہت سارے کام بھی آپ کو سمجھ میں آئیں گے، اسی عنوان سے وہاں پر پروگرام ہے۔ میں نے خطبے کے اندر 3 آیتیں پڑھی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اس لیے ہماری اپنی بھی اول ترین ذمہ داری ہے کہ اپنے دل کے اندر رحم دلی کو پیدا کرے۔ کیا کرے؟ میں آخر میں 2 باتیں بولوں گا، اس کے بعد میں انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ حافظ صاحب بول رہے ہیں مول صاحب 10 بجے کا ٹائم ہے نا، کیسا کرنا، 10:05 ہو گئے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ تو اور میں نے ایک آیت پڑھی تھی، ظہر الفساد فی البر والبحر، آپ دنیا میں جتنے بھی حالات دیکھتے قرآن کا حکم ہے، کس کا حکم ہے؟ قرآن کا فرمان ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی، یہ سب کی سب میری ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ تو میں دن بھر رات میں سونے سے پہلے استحضار کروں میں نے کتنا جھوٹ بولا، ناپ تول میں کتنی کمی کیا، دھوکہ دیا، لوگوں کو کتنا گمراہ کیا، لوگوں کو کتنا ستایا اور لوگوں کو کتنی بلا وجہ کی گالیاں دی، بیوی کو کتنی گالیاں دی، بیٹے کو کتنی گالیاں دی، یہ سب احتساب کی چیز ہے، یہ سب حساب کتاب کی چیز ہے، اپنی ذات کا احتساب کرے۔ جتنے مقدار میں میرے گناہ ہوں گے اتنے ہی حالات تنگ ہوں گے، جتنے گناہ زیادہ ہوں گے حالات اتنے تنگ ہوں گے۔ لوگ سمجھتے جادو ہو گیا، سحر ہو گیا، یقیناً جادو کا سحر کا انکار نہیں ہے، لیکن میرے گناہ بھی تو ہے میرے بھائی کچھ، ارے بولنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے گناہ بھی تو ہے جس کو اللہ تعالیٰ ذمہ دار ٹھہرا رہے، میرے اعمال بھی تو ہے جن نے لوگوں کے دلوں میں نفرت کو پیدا کر دیا، تو احتساب کریں۔ اور میں نے ایک حدیث پاک پڑھا تھا، اعمالکم اموالکم، اسی آیت کے ذیل میں نے کہا تھا، تو اپنے اعمال جیسے ہوگے اللہ کی طرف سے ویسے فیصلے آئیں گے۔ تو ہماری جو بھی حکومت کے نقشے ہیں، یہ تو دیکھو دنیا ہے، یہاں پر حکومتیں عدلتے بدلتے رہتی ہے، ایک جیسی حکومت کسی کی نہیں ہے، نہ ہماری ہے نہ ان کی ہے نہ کسی اور کی ہے۔ بس جب ہم اللہ کے مشیت کے مطابق ہو جائیں گے سارا نظام ہماری مشیت کے مطابق ہو جائے گا۔ ہم نے اللہ کی مشیت کو چھوڑ دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو تنہا کر دیا۔ ارے احساس ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی لوگ بولتے ہاں نہ بولے مولانا کیا کرنا، حالات اتنے خراب ہوئے، ہم نے تو کبھی سوچے بھی نہیں تھا کہ اپنے ایسا ہو جائے گا۔ ارے کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ جب اعمال بگڑیں گے تو سب ہوگا، سب جگہ ہوگا۔ حجاز مقدس بدل گیا، ارے بولو نا، سعودی کو کوئی تصور کر سکتا تھا؟ شراب کا، جوئے کا اور سٹے کا اور ورلی کا کوئی تصور کر سکتا تھا؟ سب ہو رہا وہاں، کیوں ہو رہا؟ اعمال بدل گئے، حالات بدل گئے۔ حکمران کون ہے؟ ارے بولو نا، 500 علماء جیل میں، ابھی کتنے علماء؟ ارے بولو نا کتنے؟ کہاں پر؟ مسلمانوں کی حکومت میں۔ حالات بدل گئے، کیوں بدلے؟ اعمال بدلے، حکام بدل گئے، حکام بدلے، وہاں دکھنے میں مسلمان ہیں، دلوں کی کیفیت بدل گئی ہے، حمیت کچھ نہیں ہے، دین کی افادیت، دین کی بقا، اس کے لیے احساس کچھ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جو دین کے ٹھیکیدار تھے، جو دین کو بچانے والے، تحفظ فراہم کرنے والے تھے، ان کو جیلوں میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی ہے، وہ جب اعمال اپنے بدل جاتے ہیں تو حکام بدل جاتے ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز، آج سے عزم کر لو، کریں گے سب کے سب؟ بولو، 2 باتیں بولوں گا انشاءاللہ، کریں گے عمل؟ کون کون کریں گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ موت تک عمل کرنا۔ ایک آج عزم کر لو، زندگی میں جھوٹ کبھی مت بولنا۔ کون کون نہیں بولیں گا جھوٹ؟ ماشاءاللہ، اللہ ہمت دے، استقامت۔ دوسری چیز، اپنے بینک اکاؤنٹ، فون پے، گوگل پے کون کون استعمال کرتے اس میں سے ہاتھ اٹھاؤ، جیسا میں بھی استعمال کرتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں؟ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اپنے بینک اکاؤنٹ کو چیک کریں۔ دیکھو حرام غذا جو ہے نا، یہ کبھی بھی انسان کو ایمان اور اعمال پر جمنے نہیں دیں گی۔ لوگ بولتے پہلے ہم 3 دن جاتے تھے تو ایمان کی کیفیت ہی الگ ہوتی تھی، تو پتہ ہے 3 دن جب جاتا تھا تو کتنے قربانی کے ساتھ جاتا تھا، اس کے پاس موبائل نہیں رہتا تھا، اس کے پاس گرمی کے موسم میں ٹھنڈا ہوا کے لیے پنکھا نہیں رہتا تھا، اور جو ہے تو اس کے پاس سہولیات بھی رہتی تھی۔ مجاہدے کے ساتھ میں ساری دنیا سے کٹ کر ایک ہی دل میں آتی تھی، اللہ امت کے حالات بدل دے، مجھے دینداری سکھا دے، تیرا چاہنے والا بنا دے، تو بن کر آتا تھا۔ اب جانے والا کیسا ہے پتہ ہے؟ فون پے، گوگل پے سے پیمنٹ کر رہا۔ میں مثال بتلا رہا ہوں، جنرلی لوگوں کے سیونگ اکاؤنٹس ہوتے، کون سے اکاؤنٹس ہوتے؟ جو ہمارے پاس میں جو عام جو ہوتے، کیونکہ بغیر چارج کرتا اس کا کوئی چارج نہیں رہتا، اور سیونگ اکاؤنٹ میں سود آتا، کرنٹ اکاؤنٹ میں انٹرسٹ بھی نہیں آتا۔
सूद काय में आता, ज़्यादा मिकदार में, सेविंग अकाउंट में। अब वो क्या होता, कभी 2 रुपए, कभी 5 रुपए, आपके अकाउंट में जितना पैसा रहा उतना क्रेडिट होते रहता। अब एक ऐसा पीरियड आता है जहां पर आके 10 रुपए जमा हो गए। कितने जमा हो गए? 10 रुपए, 20 रुपए। अब आपने कहीं से 500 रुपए की चीज खरीदी, आपके अकाउंट में आपके जाती पैसे थे 420 रुपए, 480 रुपए, उसमें 20 रुपए सूद के अकाउंट हो गए। आपने कभी उस पर देखा नहीं, ख्याल किया नहीं, उठाया, 500 रुपए का पेमेंट ऑनलाइन कर दिया। अब जनाब वो 20 रुपए ने आपके 480 रुपए की रोजी को हराम कर दिया। अब क्या हुआ बताओ? जानकर खाए, अनजाने में खाया। सूद कैसा भी खाओ, जानकर खाओ या अनजाने में खाओ, पेट में जाए बाद असर दिखाएगा, पेट में जाए बाद असर दिखाएगा। इसलिए अपने अकाउंट्स का बारीक बीनी से एहतिसाब करना। मेरे को भी बहुत ज़माने के बाद में बात क्लिक हुई, मेरे को तकरीबन 1-1.5 साल से, तो अभी मैं पूरा स्टेटमेंट निकाल लेता हूँ उसका। तो मेरे पास में एक अमाउंट फिक्स है कि उतना अमाउंट मेरा परमानेंट बैंक में पड़ा हुआ ही है, क्योंकि वो मेरा है ही नहीं। इसके लिए वो एक अमाउंट जो भी आपका इंटरेस्ट का होता है, और वो तुमको वो जब क्रेडिट होता है ना, उसका कोई मैसेज नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। वो जब आप स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इतना इतना आया, 2 रुपए आता, 5 रुपए आता, 3 रुपए आता, बड़ी रकम रही तो 100 रुपए भी आता। तो जिसके बड़े होंगे तो 100 रुपए भी आ जाते। इसलिए एहतियात करो, करेंगे सबके सब। कोशिश ये करो कि बगैर उसके कोई हमारे काम हो, लेकिन अब दौर ही ऐसा है, उसके बगैर काम ही नहीं होते जनाब। बगैर अकाउंट के, अब तो बच्चों के अकाउंट है, 5वीं बच्चा, 4थी में, 4थी से शुरू होगा अकाउंट। क्या करो, बैंक में जाके जाकर अकाउंट बनाओ, ताकि उनको आदत हो जाए, हैबिट हो जाए, इंटरेस्ट जाए जाके पेट में, ईमान से उनके दिल खाली हो जाए। करेंगे एहतियात सब। कितनी बातें बोला मैंने, कौन सी और दूसरा, हाँ, सूद का करेंगे सबके सब। अल्लाह ताला कहने से अमल की तौफीक नसीब फरमाए। उमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। जब भी जमीयतुल उलमा आपको आवाज़ दे, अपने यहाँ माशाल्लाह बस्ती की यूनिट में हाफिज़ साजिद साहब है, मौलाना मुकीम साहब है, इनकी पूरी रुफ़का है, ये लोगों को जिम्मेदार तय किए यहाँ पर इंशाल्लाह। जब भी आपको आवाज़ लगाएंगे लब्बैक कहना। जमीयत के मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ काम आते रहते, कभी कभी एहतजाज भी आते, धरने भी आते, आपने देखा होगा, आपकी बस्ती में तो पता नहीं, लेकिन आते रहते ऐसी चीज़ें। तो करेंगे ना सबके सब, जब आवाज़ लगाएंगे आ जाएंगे साथ में। ये तो नहीं कि नहीं हमारी जमात तो भाई ऐसी है, हमारे अकाबिरीन अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, कफन साथ में लेके घूमा करते थे। और ये सिर्फ मेरा उन अकाबिरीन की बात नहीं है। 2015 के इजलास में मैं जब अजमेर गया तो मेरी क़यादत हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामद बरकातुहू ने कहा था कि अगर आज के इस इजलास का हमको परमिशन नहीं दिया जाता तो यकीनन मैं तो ये तय कर चुका था कि पूरे हिंदुस्तान भर से नौजवानों को बुलाऊंगा और कफन साथ लेकर बुलाऊंगा। तो हमारी क़यादत आज भी बहुत पुरअज़म है, बस शर्त यह है कि मैं और आप मुखलिस हो जाए। क्या हो जाए? मुखलिस। करेंगे सबके सब। दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ मौला करीम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं को लग़्ज़िशों को दरगुज़र फरमा। ऐ रब्बे करीम हम बहुत गुनाहगार है, ख़ताकार है, सियाकार है, बदकार है। मौला जैसे भी है तेरे बंदे हैं, तो अपने करम फजल से हमारे तमाम तर गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ मेरे मौला किस मुँह से माफ़ी मांगे, लेकिन तू बड़ा करीम है, तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा रहमान है। तू तो मूसा से कह रहा था, ए मूसा तुम कैसे हो? अगर फ़िरौन मुझे कहता है मूसा के रब मुझे बचा ले, मेरे इज़्ज़त की कसम मैं उसे माफ़ कर देता। मौला बहुत गुनाहगार है, लेकिन यकीन हमने फ़िरौन जैसा दावा नहीं किया। ऐ मेरे मौला तो अपने करम से हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। हम तौबा करते हैं अपने तमाम तन्हाई के गुनाहों से, मजलिस के गुनाहों से, दिल के गुनाहों से, ज़बान के गुनाहों से, आँखों और कानों के गुनाहों से, हाथों और पैरों के गुनाहों से। ऐ मेरे मौला हम तमाम तर गुनाहों से तौबा करते हैं, तो अपने करम से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ मौला उम्मत की ज़ब-ओ-हाली को ख़त्म फरमा, ज़िल्लत को इज़्ज़त से तब्दील फरमा, ईमान की गैरत, ईमान की एहसास हमारे दिलों में पैदा फरमा। हमको ज़िंदा रख इस्लाम पर ख़ात्मा बिलखैर ईमान पर फरमा। शहादत के शौक़ के साथ हमको जीना नसीब फरमा। बुज़दिली ख़त्म फरमा, ईमान हमारे दिलों में पैदा फरमा। ईमान के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा। ऐ रब्बे करीम तेरी मर्ज़ी वाली ज़िंदगी अता फरमा, तेरी नामर्ज़ियात से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा इश्क हमारे दिलों में पैदा फरमा। हमको सिद्दीक़ की सदाकत पर चलने की तौफ़ीक नसीब फरमा, उमर की अदालत पर चलने की तौफ़ीक नसीब फरमा, उस्मान की हया पर चलने की तौफ़ीक नसीब फरमा, अली जैसी बहादुरी हमारे अंदर पैदा फरमा। ऐ मौलाए करीम तेरी ज़ात अली का खौफ हमारे दिलों में पैदा फरमा कर दुनिया के असरात को हमारे दिलों से ख़त्म फरमा, दुनिया की बेवकती को हमारे दिलों में पैदा फरमा, दुनिया की अज़मत को हमारे दिल से ख़त्म फरमा। तेरी एक ज़ात से होने का वजूद, तेरी एक ज़ात से होने का यकीन हमारे दिलों में पैवस्त फरमा। ऐ मौलाए करीम जो जितने बीमार हैं उनकी बीमारियों को दूर फरमा, जो मकरूज़ है उनके कर्ज़ को बगैर कर्ज़ के अदा होने की शक्ल सूरत पैदा फरमा, जो सूदी कर्ज़ में डूबे हुए हैं ऐ मेरे मौला तो अपने करम से उनके निजात का ज़रिया फरमा, जो बेजा मुकद्दमात में फंसे हुए हैं उनके रिहाई के फ़ैसले फरमा, जो बेनिका भाई बहन बैठे
بیٹھے ہیں ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے اپنی اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہے ان کے اولاد کو فرما بردار مطیع بنا۔ اے میرے مولا ہم سب کو تو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لے، محمد رسول اللہ کا سچا عشق نصیب فرما، آپ کے سچے عاشقین میں ہم کو شامل فرما، آپ کے محبوبین میں ہم کو شامل فرما۔ اے مولا روز محشر کو محمد رسول اللہ کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے میرے مولا اس دن کی اس ذلت سے ہم تمام کی حفاظت فرما، جس دن میرے نبی ہم کو دیکھ کر یہ کہہ دے ہٹاؤ اسے یہ میرا نہیں ہے۔ اے میرے مولا اس سے زیادہ ذلت کا دن کوئی نہ ہوگا۔ اے میرے مولا اس دن کی ذلت سے ہم تمام کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا محمدا ما هو اهله صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔